जय मसीह की मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं महेंद्र कुमार। बहुत बड़ी गवाही रूस और यूक्रेन की लड़ाई से लेकर के आ रही है। जो रूस और यूक्रेन की जो जंग हो रही है, ये फरवरी महीने से, इसी 2022 से जो जंग शुरू हुई है, इसमें तमाम दुनिया के देश जहां यूक्रेन के साथ खड़े हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, उपवास रख रहे हैं और दिन रात परमेश्वर से दुहाई दे रहे हैं कि परमेश्वर यूक्रेन को बचाए। क्योंकि रसिया एक बहुत बड़ा मुल्क है, उसकी बहुत बड़ी आर्मी है, बहुत बड़ा सेना है। उसके सामने यूक्रेन एक डॉट के समान है, एक छोटा सा डॉट के समान है। वो महज चाहे तो इसको मसल देगा, लेकिन ये परमेश्वर की कृपा है कि अभी तक यूक्रेन रसिया के सामने डट कर मुकाबला कर रहा है। और राष्ट्रपति जेलेंस्की दाऊद के समान गोलियत के सामने, जो पहाड़ की तरह गोलियत था, उसके सामने खड़ा था परमेश्वर के भरोसे। वैसे यह राष्ट्रपति जेलेंस्की राष्ट्रपति पुतिन के खिलाफ और उनकी विशाल आर्मी के खिलाफ खड़े हैं और तनिक भी घबरा नहीं रहे, न ही देश छोड़ के भाग रहे हैं, जबकि तमाम देश उनको विनती कर रहे हैं कि आप देश छोड़ के भाग जाइए। लेकिन लोग उनके लिए तमाम प्रार्थनाएं भी कर रहे हैं। उन प्रार्थनाओं के बदौलत कई गवाहियां इस जंग में देखने को मिल रही हैं। CBN Ukraine director Konstantin Livtyenenko. Kostya, I know you're probably under a lot of duress, facing a lot of hardship, but please share with us the latest. How are Ukrainians holding up under this Russian onslaught? Oh, hi, Gary. Oh, thank you for this opportunity to share. Well, what are the greatest needs at this time? Well, the greatest needs of this time is of course, the continuation of the prayers. How have you seen God intervene on behalf of the Ukrainian people? What do you know? What can you share? Well, I can share that one brother shared an audio from a brother from the church. So he says that his son, he's a part of the military, and he was saying that they were like in the dark night, they were holding their positions, and they've discovered that a lot of Russian Federation tanks and machines coming at them, and they might struggle defending themselves. And he picks up his phone and he calls his father. He says, "Dad, you have to pray right now. We're in a situation." So his father, he rings to other members of the church. They start praying, and then later son gives a phone call and he says, "There's some miracle happen. It looked like some spaceship, like there was like an attack from the spaceship. There was some kind of a lightnings was starting shooting from the sky, and like sparks were like spreading everywhere. And then on the morning, they've discovered that the whole machinery was destroyed. So they, like all of those soldiers, they thought maybe it was done by some kind of a weapon that we didn't know about, or it was just God's intervention." Wow. So, and there was another occasion that we just got from our friend that we know in person. We were praying that they would start resisting each other, that enemy would resist the enemy, because we know there were several biblical occasions like this, that when God was doing this. And another part of the Russian army, they occupied one little town, and they've removed flags from the town's government buildings. They attached those flags to their tanks, and they started to ride. And eventually, at the dark in the evening, they met the first group of the tanks, and so they thought they are enemies to each other, and they started shooting into each other. जैसे कि बाइबल में घटना है कि जब परमेश्वर के लोग चारों तरफ से घिर जाते हैं सेनाओं से, तो वो परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर दुश्मनों को वहां से हराता है और भगाता है और अपने लोगों को छुटकारा दिलाता है। ऐसी ही घटनाएं देखने को, ऐसी ही गवाहियां इस रसिया और रूस और यूक्रेन की युद्ध में देखने को मिल रहा है। उससे पहले मैं थोड़ी सी इसके बारे में आपको जानकारी देना चाहूँगा कि इसमें गवाही में पहली गवाही यह है कि एक नौजवान युवक जो यूक्रेन की आर्मी में शामिल था,
और अपने पूरे टीम के साथ वो बॉर्डर पर अपने पोजीशन लिए हुए थे। और रात को, अंधेरी काली रात को अचानक उनको सुनाई दे रहा है कि बहुत सारे टैंक्स, वार टैंक्स, रशियन वार टैंक्स, ट्रूप्स और मोबाइल टैंक, मशीन गन्स, पूरे हथियारों से लैस बहुत सारा उनके चारों तरफ से आ रहे हैं और उनके वो नज़दीक आ रहे हैं। और उनको ऐसा महसूस हुआ कि वो इतने ज़्यादा हैं कि उनका यह सामना नहीं कर सकते हैं। तो उसने, उस नौजवान जो मसीही सैनिक था यूक्रेनी, उसने अपने पिता को फ़ोन लगाता है और बोलता है उसी रात को कि पिताजी, हमें आपकी प्रार्थना की ज़रूरत है, हम ऐसे ऐसे स्थिति में घिर गए हैं और आप प्लीज़ प्रार्थना कीजिए। उसके पिता चर्च में वह ऑडियो के मैसेज को बताते हैं, चर्च के लोगों के साथ शेयर करते हैं और चर्च के लोग सभी प्रार्थना करने लगते हैं। प्रार्थना करते हैं। कुछ समय बाद उस नौजवान सैनिक का फिर से अपने पिता के पास फ़ोन आता है और वह कहता है कि पिताजी, अभी एक अद्भुत चमत्कार हुआ है। आसमान से एक ज्योति सा, बहुत बड़ा ज्योति सा प्रकट हुआ है, चमका है, और वो एक बहुत बड़ा स्पेसशिप से निकला है और उसमें से चिंगारियाँ निकली हैं। और वह चिंगारियाँ जो है कि पूरे टैंकों पर, रशियन टैंकों पर, उसके ट्रूप्स पर, मोबाइल्स टैंक पर, उनके जो भी आर्मी पर, उनके ऊपर गिरा है। और ऐसा ही चमत्कार देखने को मिला है। उसके बाद जब सुबह होती है, बात उनको बताता है और बताने के बाद वो सुबह जब होता है तो वो लोग जब अपने अपने पोजीशन से बाहर निकलते हैं और निकल करके जब देखने जाते हैं तो क्या देखते हैं कि रूस की तमाम टैंकें उजड़ी पड़ी हैं, नाश हुई पड़ी है, बिखरी पड़ी है, जली पड़ी है। उसके सिपाही वहाँ से ख़त्म हो चुके हैं, कुछ भाग गए हैं, कोई दिखाई नहीं दे रहे हैं, कुछ डेड बॉडियाँ मिल रही हैं, उनकी गोला बारूद सब बिखर चुका है। इस तरीके की उनको देखने को मिला। तो ये गवाही एक और इसी तरह की गवाही है। ये सारी गवाहियाँ मुझे CBN न्यूज़ के जरिए मिला है, जो मैंने आपके लिए यहाँ पर लेकर के आया है, ताकि आपको भी इस गवाही के द्वारा आशीष मिले और आप भी प्रार्थना करें, यूक्रेन की अपने प्रार्थनाओं में याद रखें कि परमेश्वर उसकी मदद करे। दूसरी गवाही उसमें यह मिलता है कि दुश्मन जो लोग हैं, इसमें गवाही में बता रहे कि उनको CBN न्यूज़ के जो डायरेक्टर हैं, जो यूक्रेन के डायरेक्टर, उनको बताया, उनका कोई दोस्त है जो आर्मी में रहता है, उसने ये गवाही बताया कि उसने क्या देखा कि रशियन आर्मी के जो लोग हैं वो एक दूसरे को खुद ही मार रहे हैं, ऐसी उनको देखने को मिला है। और तीसरी गवाही एक और मिला है कि रशियन आर्मी क्या करता है कि रूस का एक छोटे से टाउन पर कब्जा कर लेते हैं, वहाँ जाते हैं, लड़ते हैं और कब्जा कर लेते हैं। कब्जा करने के बाद वहाँ का जो गवर्नमेंट का जो ऑफिस था, उस ऑफिस के ऊपर जो यूक्रेन का झंडा फहर रहा था, उस झंडा को लोग उतार लेते हैं और वहाँ अपना जो भी झंडा है लगा देते हैं और उस झंडे को लेकर के आते हैं, खुशी से खुश होकर के, और उसको लेकर के अपने टैंक पर, वार टैंक जो होता है जिस पे बैठ जाते हैं, फिर वो जाने लगते हैं दूसरे सिटी की ओर। जब जाने लगते हैं और वो झंडा सोचते हैं कि इस झंडे के द्वारा हमें जो यूक्रेनियन लोग हैं उनको हम धोखा दे सकते हैं, इस झंडे के द्वारा यूक्रेनियन जो आर्मीज है उनको धोखा दे सकते हैं, क्योंकि वो ये झंडा देख के वो समझेंगे कि ये यूक्रेनी लोग हैं, और वो लेकर के झंडा को अपने टैंक पर बांध देते हैं और बांधने के बाद आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन अचानक आगे से उधर से रशियन जो फेडरेशन का टैंक होता है, एक विशाल सेना का जो टैंक के साथ एक बहुत बड़ा सेना का ग्रुप आ रहा होता है और उन दोनों आमने सामने हो जाते हैं। नतीजा ये होता है कि जो रशियन आर्मी का जो बड़ा ग्रुप था वो जो उधर से आ रहा था, तो उसने जब देखता है कि सामने तो यूक्रेनी जो है टैंक है जिस पर झंडा फहर रहा है, और वहाँ से वो गोला बारूद चलाना शुरू कर देते हैं, एक दूसरे को मारना शुरू कर देते हैं। इधर थे, इनको यह प्रतीत होता है कि कहीं ये भी हमारे ही तरह तो झंडा बदल के नहीं आ रहे, ये भी यूक्रेनी हो सकते हैं और रशियन झंडा लगा लिए हैं, जिसके वजह से उन्होंने ये भी उनको मारने लगते हैं। तो इस तरीके से एक दूसरों को खुद ही मार के वो खत्म कर देते हैं। तो ये तीन गवाहियां बहुत रसिया और यूक्रेन की जंग से आई हैं, जो कि परमेश्वर के सामर्थ्य को देखा गया है कि परमेश्वर कार्य कर रहा है आपके प्रार्थनाओं के द्वारा। इसमें कुछ बाइबल से मैं आपको कुछ रेफरेंस देना चाहूँगा कि बाइबल में कुछ घटनाएं ऐसी हुई हैं जहाँ पर परमेश्वर ने खुद अपने लोगों का साथ खड़ा हुआ है। तो जैसे कि सबसे फेवरेट है और सबसे फेमस जो आप जानते हैं कि दाऊद ने महज एक नौजवान होने के बावजूद
एक विशाल चैंपियन के खिलाफ खड़ा हो जाता है और परमेश्वर उसको जीत दिलाता है। तो पहला सामुएल और उसका 17 अध्याय में एक घटना मिलेगा कि राजा दाऊद जो महज एक बालक होता है और एक चरवाहा होता है, और वह जो चैंपियन होता है, जो लड़ाई युद्ध का योद्धा चैंपियन होता है फिलिस्तीन का गोलियत, जब वो इजराइल को ललकारता है तो उसके खिलाफ वह खड़ा हो जाता है। किसके भरोसे? परमेश्वर के भरोसे। तो आज के टाइम में आप जानते ही हैं कि पूरी दुनिया में जो जिनका पावर चलता है, जिसमें नाटो है और यूएनए है और रशिया फेडरेशन है, अमेरिका है, ब्रिटेन है, चीन है, इन तमाम महाशक्तिशाली देश जो है चैंपियन माने जाते हैं। से 4 करोड़ की छोटी सी देश की आबादी वाला देश की कोई गिनती नहीं होता है। लेकिन अभी जो ये घटना हुई है कि इतना बड़ा चैंपियन जिससे यूएस तक भी कांपता है, रसिया से ब्रिटेन कांपता है, पूरा यूरोप कांपता है, इस गल्फ कंट्रीज जो है वो भी डरती हैं रसिया से। लेकिन उसके बावजूद भी उसने अपने छोटे से मुल्क, अभी हाल ही में जो देश आज़ाद हुआ है, मुश्किल से अभी 10-15 साल भी नहीं हुए होंगे उस देश को आज़ाद हुए, उस देश पर अचानक रूस ने हमला कर दिया और एक नौजवान, एक मामूली साधारण सा दिखने वाला और जो पहले टीवी एक्टर का काम करते थे, जो राष्ट्रपति जेलेंस्की, आज वह उसी के समान उस पहाड़ जैसे देश के खिलाफ खड़े हुए पड़े हैं। बहुत सारे रशियन सैनिक सरेंडर कर चुके हैं, जिनको आपने वीडियो में देखा होगा। उनकी जो वार टैंक है उनको कब्जा कर लिया गया है और रूस की सेना हारती हुई दिख रही है। लेकिन उसके बावजूद भी क्या होता है, जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने देखा है कि अरे हम तो हार रहे हैं, हमारी सेनाएं हार रही हैं और ये तो सरेंडर नहीं कर रहा है, तो फाइनली उन्होंने फिर जो परमाणु बम से हमला करने का धमकी दिया है, क्योंकि सेना अब उनकी कोई यूक्रेन को हराने में असफल रही है। तो जिस कारण से उन्होंने परमाणु बम का धमकी दिया, क्योंकि उनको पता है उनके पास परमाणु बम का बहुत बड़ा जखीरा है और पूरे यूरोप में उनके इतना नहीं है, उनके सबसे बड़ा यह जखीरा है। तो इस पूरी घटनाओं के बारे में तो हम देखते हैं बाइबल के 17वें पहला सामुएल और उसके 17वें अध्याय में बाइबल में कि राजा दाऊद गोलियत को किस तरीके से हराता है परमेश्वर के भरोसे, और परमेश्वर वहाँ पर क्या करता है, विरोधियों को हरा देता है। दूसरी घटना हम देखते हैं जो हमको मिलता है, दूसरी घटना हमें देखने को मिलता है दूसरा इतिहास, बाइबल के पुस्तक दूसरा इतिहास में और 20वें अध्याय में, और वहाँ 10वें वचन में हम देखते हैं कि वहाँ पर उस जो राजा यहोशाफात होता है, जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और उन्हीं पर भरोसा रखते हैं। और होता यूँ है, इस घटना की पूरी कहानी आप देखते हैं तो कि अमोन, मोआबी, अदोमी 3 सेनाएं मिल करके और यहोशाफात के राज्य पर हमला कर देते हैं। जब हमला कर देते हैं तो उनका सिपाही आके बोलता है कि वो लोग तो हमला करते आ रहे हैं और काफ़ी जगह तो उन्होंने नुकसान पहुंचा दिया आपके राज्य में। अब वो इस बात को सुनते हैं तो वह परमेश्वर के मंदिर में जाते हैं। यहूदा और यरूशलेम के जितने भी लोग थे, परमेश्वर के जन, वो मंदिर में जाते हैं। वहाँ जा करके वो लोग प्रार्थना करते हैं, और प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर डायरेक्ट क्या करता है, दुश्मन सेनाओं को हराने के लिए तैयार हो जाता है और उनको हरा देता है, और प्रार्थना के बदौलत। इस घटना को आप पूरी जब आप पढ़ते हैं तो आपको पूरी जानकारी इसके बारे में मिलता है। और दूसरा इतिहास के 20 अध्याय में और 14वें नंबर वचन में बोलता है कि परमेश्वर की आत्मा जहाजिएल पे आता है, और परमेश्वर की आत्मा बोलते हैं कि घबराओ नहीं, और इस तरीके के परमेश्वर तुम्हें छुटकारा देगा, उसके बारे में पूरी वो बताते हैं। तो वचन 20 में जो यहाँ पर मिलता है कि यहोशाफात राजा जो है कि समझाता है कि हमको कैसे क्या करना है। वो अपने प्लान को बताता है कि हमें दुश्मन की सेनाओं के सामने परमेश्वर की स्तुति करना है और उनके सामने मार्च करना है और प्रभु का गीत गाना है। और लोग गीत गाने लगते हैं, प्रेज द लॉर्ड, लॉर्ड्स लव नेवर फेल्स, नेवर एंड्स। इस तरीके के बोल बोल के वो लोग गीत गाने लगते हैं। और जब वो गीत गाते हैं और प्रभु की स्तुति और तारीफ प्रशंसा करते हैं तो परमेश्वर अदोमी, अमोनी और मोआबी को कंफ्यूज कर देता है, और वो आपस में ही लड़ते हैं और लड़ते मर जाते हैं। और ये आप देख सकते हैं 22 नंबर वचन में और 23 नंबर वचन में। तो ऐसा ही घटना जो है कि आज के टाइम में रूस और यूक्रेन की जंग में देखने को गवाहियाँ मिली है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अपने करीबी मसीही और अन्य
दोस्त फ्रेंडों के साथ शेयर करें ताकि वो भी परमेश्वर के महान कार्य को जान सकें, देख सकें। वो और सब्सक्राइब ज़रूर करें क्योंकि इस तरीके के वीडियोस मैं आपको लोगों के लिए लेकर के आता रहता हूँ। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दें।